ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਪੱਖੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ। ਐਤਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈਗੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਸ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 0 ਸੀਟ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ परिणाम ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਨੇ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਸ੍ਰੇਆ ਸਰਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਜੋ ਸ੍ਰੇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ। ਮਾਧਿਅਮ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਸਕੀਏ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸ੍ਰੇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ श्रेया साढ़े नाल जुड़ चुके हैं दोस्तों, गलबात कर रहे। बहुत बहुत स्वागत श्रेया आपका। नमस्कार, कैसे हैं आप मैं शिविंदर जी? बिल्कुल बढ़िया। श्रेया, मैंने इंट्रो में कहा है कि पंजाब बंगाल से जानना चाहता है, बंगाल जो है वो पंजाब के बारे में जानना चाहता है। जो ये चुनाव के नतीजे आए हैं, तो मुझे लगता है कि कोई खास रस्मी इंटरव्यू नहीं होगी, हमारी बातें होगी। आपके मन में जो सवाल है पंजाब को लेके आप मुझसे पूछेंगी, और मेरे मन में जो सवाल है वो मैं आपसे पूछूंगा। पहले शुरुआत मैं कर लेता हूँ कि जी। बंगाल के बारे में हमें ये था इस बार के, देखिए जी, बीजेपी ने अपनी काफी बढ़त बनाएगी, बीजेपी आ जाएगी। बीच बीच में मित्र कह रहे थे कि नहीं बीजेपी नहीं यार, अभी थोड़ा सा लेफ्ट भी पावरफुल हुआ है, जब ममता संभल लेगी। अभी जो यथास्थिति बनी है वो कैसे बनी है? पहले तो, क्योंकि एक बार पहले भी आपने बात की थी, उस समय आपने बात की थी कि जो बंगाल इलेक्शन की बात की थी, विधानसभा इलेक्शन के बाद, कि ममता का आना और बीजेपी का राइज होना, उसके पीछे क्या कारण था। तो वही बात से हम शुरू करें तो उसकी ही रोशनी में जो ये विधानसभा का नतीजा आया है, तो आप ये एक तो बताइए कि इस नतीजे को आप कैसे देखती हैं? देखिए, इस बार भारत में जो राष्ट्रीय चुनाव लड़ा गया है ना, जी। इसमें खासियत ये है कि ये एक असेंबली इलेक्शन की तरह लड़ा गया, मुझे लगा। हाँ। हर प्रदेश में ये उभर के आया है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उसी ने डिसाइड किया कि कौन इलेक्टेड होगा इस बार। तो बहुत ही विचित्र, बहुत ही डिफरेंट रहा है इस बार का चुनाव। जी। और बंगाल में अगर आप देखेंगे, एक चीज मैं पहले ही कह दूं, अरुण जेटली साहब ने बहुत पहले एक बात कही थी कि बंगाल में हिंदू तो है, वो सांस्कृतिक हिंदू है, राजनीतिक हिंदू नहीं है। हाँ, दे आर जिसको कहते हैं कल्चरल हिंदूज, बट उनको कन्वर्ट करना पॉलिटिकल हिंदू में बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां का एक प्रथा है, एक इथॉस रहा है, जो सीपीएम लेफ्ट फ्रंट रही है 30 साल से, उसके बाद टीएमसी रही है, कि मन में जो भी हो, पर्सनल जो भी प्रैक्टिस हो लोगों का घर में, पूजा पाठ करते हो या नहीं, अगर राजनीति के एरिना में जाएंगे
तो वो कभी सांप्रदायिकता को यूज नहीं करते। हाँ, और वो प्रथा पहले थी, अभी भी आई एम ग्लैड वो चली आ रही है, वो कंटिन्यू कर रहा है अभी। तो उसी का हम देख रहे हैं नतीजा इस बार चुनाव में। इस बार एक बात और रही है कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा था। एग्जिट पोल ने, वो उन लोगों का दावा था कि 25 से 30 सीट आएंगे। हाँ, आउट ऑफ 42 सीट्स 25 से 30 सीट अगर आ गया भाजपा को किसी प्रदेश में, मतलब वो तो उनके लिए एक सेकंड यूपी बन गया, है ना। तो यही एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि शायद भाजपा को ये मालूम था, एग्जिट पोल वालों को भी इसका थोड़ा सा वो लोग समझ गए थे कि दूसरे राष्ट्रों में, दूसरे राज्यों में शायद भाजपा का सीट्स कम हो जाए। हाँ, अब यूपी में कम होगा किसने जाना था। महाराष्ट्र में उन लोगों को लगा था कि शायद 50-50 हो, उसी के आसपास रहा। तो इस बार बंगाल में जो हुआ 2019 में, जो हमने देखा था, हाँ, असेंबली इलेक्शन के टाइम, कि भाजपा ने कुछ गलतियां की थी। हाँ, एक गलती उनका था कि वो पर्सनल अटैक कर रहे थे बहुत ज्यादा, ममता बनर्जी पर, अभिषेक बनर्जी पर। वो लोगों के साथ सही नहीं बैठा। हाँ, दूसरा उन्होंने किया बहुत ज्यादा, हिंदू मुस्लिम डिवाइड को लेकर उन्होंने बात किया था, और सीएए को लेकर बात छिड़ा था। हाँ, बहुत तनाव था किसी किसी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये सब बातें ना उन्होंने कोर्स करेक्ट किया 2024 में, जब चुनाव लड़ने आए। उन्होंने ममता दीदी को पर्सनली अटैक नहीं किया, उन्होंने सीएए के बारे में बहुत ज्यादा बातचीत नहीं किया, और हिंदू मुस्लिम डिवाइड के बारे में भी थोड़ा सा वो म्यूट रहे। हाँ, पर कुछ और चीजें जो गलतियां उन्हें पहले की थी, इस बार उन्होंने दोहराया। एक है कि जो उनका संगठन है वो वीक था। हाँ, मैंने आपसे, शायद आपको याद हो, मैंने कहा था कि ओल्ड बीजेपी और न्यू बीजेपी के बीच एक दरार था पहले, वो दरार इस बार भी दिखा। हाँ, दिलीप घोष ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था 2019 में। हाँ, किसको मालूम था कि 18-19 सीट जीत जीत सकता है बीजेपी, भाजपा। पर उन्हीं उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है उसमें। दिलीप घोष को उन लोगों ने हटा दिया इस बार। हाँ, उन्हीं के सीट से एक महिला को उन्होंने खड़ा किया जो हार गई। बिल्कुल। और हाँ, और जो नया, जो एक नया न्यू वेव बीजेपी, शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी में थे, वो आ गए। हाँ, और उन्होंने ठीक किया इस बार, उन पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये ठीक नहीं किया भाजपा ने, उन्होंने ठीक किया कि किसको टिकट मिलेगा, कौन कहाँ से खड़ा होगा। तो ये सब ठीक नहीं बैठा लोगों के साथ। हाँ, ये जो गलती पहले थी इस बार भी दोहराया। और एक थर्ड चीज जो आपने न्यूज़पेपर में बहुत देखा होगा, उन्होंने ना संदेश खाली को लेकर हाँ, बहुत ये बड़ा मुद्दा बनाया। बहुत हाँ, अच्छा। हाँ, अब मेरा मानना ये है कि 2007-8 में जो नंदीग्राम में हुआ, और उससे एक साल पहले जो शिंगूर में हुआ, वो एक टर्निंग पॉइंट था ना बंगाल के लिए, क्योंकि तभी से टीएमसी ने अपना दिखाया, अपना वेट दिखाया, फिर 2011 में आ गई। तो बीजेपी ने सोचा कि शायद ये उनके लिए नंदीग्राम जैसे काम करेगा, टर्निंग पॉइंट होगा। ये चाल उनका ठीक नहीं बैठा, क्योंकि टीएमसी माहिर है, कुछ भी अगर नरेशन दे, उसका काउंटर नरेशन कैसे देना है वो बहुत अच्छा घुमा सकती है। हालांकि तो संदेश उस काफी सारी रिपोर्ट्स आई थी जो मतलब ये हाँ, किताबों को जुटला भी रही थी मेरे ख्याल में। संदेश खाली में देखिए, एक चीज है वहां जो है, लैंड ग्रैबिंग का जो केस है वो हो रहा है, जबरदस्ती जमीन को कब्जा किया जा रहा है, उसको श्रिम्प कल्टीवेशन के लिए कन्वर्ट किया जा रहा है। ये सब आरोप है, गंभीर आरोप है, पर उससे भी जो ज्यादा गंभीर आरोप निकल के आया वो था सेक्सुअल एलिगेशन का। हाँ, तो वो जब आया तब सब सारे नेशनल न्यूज़पेपर्स उसको लेकर लिखने लगी, और एक नेशनल इशू बन गया। तब तक तो भाजपा के लिए वो काम कर रही थी, इट वाज वर्किंग फॉर देम।
पर उसके बाद क्या हुआ, एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जैसे मैंने आपको कहा टीएमसी माहिर है इस इन सब चीजों को घुमाने में। हाँ, एक स्टिंग ऑपरेशन से निकल के आया कि वो फॉल्स था, स्पेशली सेक्सुअल एलिगेशन जो इतना गंभीर आरोप लगाया था वो फॉल्स था। तब से ना वहां के लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि किसको सच माने किसको झूठ माने। और कभी कभी कंफ्यूजन में क्या होता है, जो इनकम्बेंट रूलिंग पार्टी है वही फिर से वापस आ जाती है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि किसका बात माने। और एक बात ये है, बोशीरहाट जो चुनाव क्षेत्र है उसमें संदेश खाली आता है, वहां का पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। हाँ, और उनका वोट इस बार एनकोर आया टीएमसी के तरफ। हाँ, 2019 में शायद यहाँ वहां थोड़ा सा वो डिवाइड हो गया था, इस बार सारे माइनॉरिटी इंक्लूडिंग दलित बहुत इन अ बिग वे वो लोग खड़े रहे टीएमसी के साथ, और यही एक कारण है कि टीएमसी वापस आई। अ, कुछ ऐसी बात पंजाब के बारे में आप जानना चाहें? एकदम। आप मुझे पहले तो ये बताइए कि पंजाब का इस बार अ, इस इसको बोलते थे एक चार कोना तो पांच कंपटीशन कोना, था। कई जगह पांच कोना भी था। अच्छा, पांच भी निकल के आया। हाँ, अच्छा। पांच अच्छा, भी। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के लिए हाँ, है ना। इंडिपेंडेंट भी थे, हाँ जी बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। तो ये कांग्रेस को ही तो ज्यादा सीट्स मिले। जी तो जी। अगर आप थोड़ा सा ऊपर से बोले मोटा मोटा कि क्या हुआ, हम्म। कांग्रेस कांग्रेस कैसे वापस आ गई। असल में मुझे ये लगता है कि पंजाब ना एक ऐसा स्टेट है जिसके बारे में नेशनल मीडिया में भी उस तरह सीरियस कभी बात होती नहीं है, जैसे बंगाल के बारे में भी जी। बात है, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जो दिल्ली के दिल से बहुत दूर रहते हैं, पता नहीं क्यों रहते हैं। तो पंजाब का भी हम्म सूरत हाल ऐसी थी कि पंजाब एक ऐसा स्टेट है, देखिए वो आमतौर पे कई सारी बातें बंगाल से मिलती जुलती है। रेजिस्टेंस करने का इतिहास है, आज़ादी मूवमेंट में दो योगदान को लेके है। और 47 का जो बंटवारा हुआ है, पार्टीशन हुआ, पार्टीशन को बंगाल ने भी उतना ही सहा, पंजाब ने भी उतना ही सहा, बल्कि पंजाब और बंगाल दोनों ने ही सहा और किसी ने नहीं सहा। हम्म जब पूरा देश जश्न मना रहा था तो पंजाब और बंगाल हम्म दोनों कुरला रहे थे, रो रहे थे। तो कई सारी चीजें समानता है। पंजाब में एक लगातार ये चीज रही है कि एक चेंज वाली भावना रही है कि चेंज आनी चाहिए। जिस तरह की वो चेंज को देखता रहा है, चाहे वो चेंज नेगेटिव हो या पॉजिटिव, पंजाब उस तरफ उलार हो जाता है। चाहे वो नक्सलाइट मूवमेंट हो, चाहे आजादी आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी पार्टियां हो, या खालिस्तानी आंदोलन के समय भी हमने देखा वो एक लहर थी, चाहे वो लोक पक्षी लहर नहीं थी। पर पंजाब ऐसा कुछ नया हम्म चेंज लाने की प्रैक्टिस करता रहा है। पंजाब ने इसी तरह अपने स्टेट का तशद्दुद भी, जुल्म भी सहा, और उसने आतंकवादियों मिलिटेंट्स का जुल्म भी सहा। हम्म उससे निकल के जो पंजाब बना है ना, वो कुछ ऐसा बन गया कि आप देखिए कि 19 में जब सीए आया, तो हम्म पंजाब में कोई मुस्लिम आबादी इतनी है नहीं, पर फिर भी पंजाब ने हम्म सीए के विरोध में मुस्लिम के पक्ष में खड़ा हुआ। जब कश्मीर में हम्म 370 खत्म हुई तो भी मतलब पंजाब ने ही आवाज उठाई थी। सो ये पंजाब का एक ग्रेटनेस है, एक जो कभी कम दिखती है। इसलिए वो जो कोई वो फटाफट फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है दूसरी पार्टियों से। जैसे कांग्रेस के बाद अकाली, फिर जब उनको थर्ड हम्म कभी दिखा आम आदमी पार्टी में, तो उन्होंने आम आदमी वो पार्टी को ले आए। उसको अपनाया, हाँ। अब हुआ क्या कि इस बार के चुनाव में नोटा को 1 लाख से भी ज्यादा मत नोटा को पड़े हैं पंजाब में। और इंटरेस्टिंग। 2% वोट हुई है, जो कि पिछली दफा की चुनाव से बहुत कम है, जो विधानसभा में 70% से ऊपर हुई थी उससे भी कम है। 19 में जब 65% के करीब वोट हुई थी लोकसभा में, उससे भी कम है। इसका मतलब बहुत, इस बार जब मैं ग्राउंड में था तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार आपको भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, अब अकाली को भी देखा हुआ है, बीजेपी को, तो अब हम क्या करें, मतलब किसको वोट डालें। मतलब बहुत सारे लोग तो ने इस बार इंटरेस्ट नहीं था इलेक्शन में, यह चीज एक बड़ी चीज। हम्म फिर उनको लगा कि जो उम्मीदवार सही है उसको वोट डाल दी जाए। एक दूसरी तरफ बीजेपी कोशिश कर रही थी, इस बार अकेली उसने चुनाव लड़ा है, अकेला चुनाव लड़ने हम्म की कोशिश की है। हम्म हालांकि उसने अपना वोट बैंक बनाया, बढ़ाया, उसने पोलराइज किया, हिंदू को पोलराइज करने की कोशिश की, पर उस हद तक कामयाब नहीं हुई। लेकिन उसका 18% वोट बैंक बन गया, जो पहले 9% था। हम्म हालांकि सीट कोई नहीं ली। और दूसरा, हम्म जैसे बंगाल में बीजेपी ने दलितों में घुसपैठ करने की कोशिश की, पंजाब में भी हम्म दलितों के एक सेक्शन में घुसपैठ करने की कोशिश की, हालांकि वो कामयाब नहीं हो सकी।
ये कुछ नई चीजें थी। जब वोट इस तरह बट गई तो उसमें कांग्रेस हम्म, पार्टी का एक दाव लग गया, जिसे कहते हैं, उसको मौका मिल गया आगे हम्म, आने का। मौका मिल गया। टोटली ये जो चुनाव का हम नतीजे थे, वो जनादेश था, वो सेंट्रल हम्म, गवर्नमेंट के भी उल्ट था और पंजाब गवर्नमेंट के भी उल्ट था। अकाली दल पहले ही हम्म, खत्म हो चुका था, इसीलिए मुझे लगा कि इसमें कांग्रेस का को मौका मिल गया आगे आने का। 7 सीट कांग्रेस लेके गई है। 3 सीट इसमें आम आदमी पार्टी जो मौजूदा पंजाब में जी। सरकार रही है वो लेके गई है। दो हाँ। आजाद उम्मीदवार हम्म। लेके, आजाद उम्मीदवार भी इसी तरह लेके, क्योंकि बहुत सारे। इसके बारे में मुझे आपसे पूछना है, जो दो इंडिपेंडेंट इस बार जीत गए हैं, आप मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक तो वो इम्प्रिजन्ड है अभी, जेल अमृतपाल से लड़े हैं। अमृतपाल हाँ, फिर भी वो जीत गए। तो ये आप थोड़ा सा आप समझाइए कि ये कैसे हुआ, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कैसे जीते इस बार, मैं क्योंकि लोग इतने हाँ, मतलब उन्होंने उनका होप चला गया सब पार्टी से, जैसे आपने कहा। एक तो यही ये कारण है। कारण है क्या? एक तो यही कारण है हाँ। कि जब ना कई बार कोई स्टेट चेंज चाहता है तो उसको चेंज नहीं मिलती, तो वो कई बार ऐसे एलिमेंट्स को चुन लेता है जो एलिमेंट्स हम्म, हो सकता है कि वो पीछे को ले जा, समाज को पीछे, सोसाइटी को पीछे को ले जाने वाले भी तत्व हो सकते हैं, उनको वो भी चुने जा जी। सकते हैं। पंजाब में देखिए एक पॉलिटिकल वैक्यूम है। जब हम्म, पॉलिटिकल वैक्यूम होता है उसमें कई तरह की ताकतें आ जाती है, या तो आप बहुत बड़ा एक छलांग लगाते हो आगे की तरफ, यदि आगे की तरफ वो छलांग नहीं लगती तो आप फिर पीछे की तरफ भी ले जाने वाली ताकतें भी भारू हो जाती हैं। ये आपने ठीक कहा। दूसरी बात यह है कि 89 में भी ऐसा एक दफा हुआ हुआ है। ये पहली दफा नहीं हुआ कि जेल में कोई जीत गया। हम्म, 89 में हम्म, जब पंजाब का माहौल खराब था, मिलिटेंसी का दौर था, उस समय भी सिमरनजीत सिंह मान जो खालिस्तान की बात करते हैं, हम्म, उनके 6 उम्मीदवार जीते थे, 13 में से 6 उम्मीदवार जीत गए थे। और उसमें हम्म, से 6 उनके जीते थे, 2 कांग्रेस पार्टी ने सीटें ली थी, एक सीट हम्म, जनता दल ने ली थी। उस समय जनता दल सेकुलर जो यूनाइटेड नहीं था, जनता दल ही था। उसमें इंद्र कुमार गुजराल जीते थे। तो अच्छा। बाकी जो 3 सीट्स हैं, उस 3 सीट्स में एक में बसपा जीती थी और 3 सीट में आजाद हम्म, उम्मीदवार जीते थे, जिनको कि सिमरनजीत सिंह मान वाले गरम उगर सिख गुट की ही हम्म, सपोर्ट की। हम्म, उस समय भी 2 व्यक्ति, अच्छा। सिमरनजीत सिंह मान, और जो कि तरन तारण से 4,80,000 के फर्क से जीते थे, और एक अरतिंदर हम्म, पाल सिंह, ये दोनों जेल से जीते थे। पर बाद में ये अच्छा। चले नहीं, ये ज्यादा चला नहीं। बाद में फिर हाँ, कांग्रेस आ गई। उसका कारण क्या है कि उस समय भी लोगों का ब्लू स्टार ऑपरेशन होके हटा था, सिख हाँ, कत्लेआम होके हटा था, लोगों का गुस्सा था कांग्रेस के प्रति। वो गुस्सा, डिसोल्यूशन थे। वो गुस्से को राइट हम्म, ने पूरा किया। अब भी यही सूरत हाल है, कोई भी पार्टी में लोगों का उतना विश्वास नहीं रहा। फिर उसके बाद जो कुछ सिखों के इशू है, जैसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स की जो सजा पूरी कर चुके हैं, उनकी या माफी का मुद्दा है उसी तरह पड़ा है। गुरु ग्रंथ साहब की जो बेअदबी हुई थी उसका मुद्दा उसी हम्म, तरह पड़ा है। ये तमाम मुद्दे हम्म, जब उसी तरह पड़ते हैं, किसी पार्टी ने हल हम्म, नहीं किए, तो फिर कई बार लोगों का गुस्सा इस रूप में भी दिखता है। वो मुझे लगता है कि ये, लेकिन ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं। इसमें देखिए एक तो अमृतपाल है, जिसके बारे में मुझे शुरू से डाउट रहा है कि वो उसको हम्म, लाने में भी कहीं ना कहीं किसी ऐसी ताकतों का हाथ है जिनकी सुर कहीं ना कहीं बीजेपी से ही मिलती है, क्योंकि वो जहाँ जैसा कि प्रचार हम्म, करता है कि मुझे हिंदू राष्ट्र से कोई दिक्कत नहीं, पर आप मुझे खालिस्तान दे दो, या फिर वो आके अच्छा। धर्मांतरण का मुद्दा खड़ा करता है। ऐसे मुद्दे खड़े करता है कि जो बीजेपी को सूट करते हैं। अच्छा, एक बंदा हम्म, हुआ है सरबजीत खालसा, वो अपने आप को, उसने एक रिसेंट इंटरव्यू दिया कि मैं खालिस्तान से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं खालिस्तान नहीं चाहता। लेकिन उसके उसके जो बाप है, उसका पिता है, उसका पिता हम्म, एक बेअंत सिंह है जिसने कि इंदिरा गांधी का मर्डर किया हुआ था। मर्डर उसने किया था। पूरी जो चुनाव है वो जज्बाती तौर पे लड़ी कि मेरे देखो बाप की मौत होगी, मेरी माँ बाप की होगी, किसी ने मुझे पूछा हम्म, नहीं। और यहां तक मैं बताऊं कि अमृतपाल की जो कंपेन थी, जो वो जेल में था, उसके माँ बाप चला रहे थे, उन्होंने भी खालिस्तान का मुद्दा नहीं उठाया। वो मुद्दा उठा रहे थे ड्रग का, वो मुद्दा उठा रहे थे हाँ। बिजनेस का। अब मसला क्या है, मुझे लगता है कि जब सरकारें, हुकूमतें, पॉलिटिकल पार्टियां लोगों के मसले हल नहीं करती, तो एक फिर कोई हम्म, नकली मसीहा बन के आता है, झूठ मूठ का मसीहा बन के आता है। वो उनको विश्वास दिलाता है कि आपकी मुक्ति मैं कर सकती है, तो लोग उस पर कई बार विश्वास कर लेते हैं, पर वो लंबा समय नहीं हाँ, चलती। हाँ। उसी से मुझे आपने अभी कहा कि ये जो ड्रग की जो समस्या है, हाँ, ऐसे जैसे बंगाल में कुछ स्थानीय मुद्दे हैं,
पंजाब में ऐसे स्थानीय मुद्दे कौन से हैं? एक तो आपने कहा ड्रग का जो है, वो तो बहुत दिनों से, बहुत सालों से है अभी, हाँ। और एक दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट का, जिसके लिए एक मास एक्सोडस, बाहर बहुत लोग जाना चाहते हैं, हाँ, लीगली या इलीगली, डंकी रूट में। टंकी ये रूप एक तो है। है, हाँ, डंकी रूट में है। और एक जो है कि फार्मर मूवमेंट, इसका भी इस बार असर शायद रहा है। इसीलिए भाजपा और अकाली दल भी, दे पार्टेड वेज, एक साथ उन्होंने चुनाव नहीं लड़ पाया। तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं आपके हिसाब से, जिसने डिसाइड किया इस बार का चुनाव? देखिए, इस बार एक तो जो पॉलिटिकल पार्टीज ने तो बिना किसी मुद्दे पे चुनाव लड़ा, उन्होंने तो एक दूसरे को गाली निकाल के चुनाव लड़ा। ये ये अच्छा रहा, ये नहीं रहा। और लोगों का भी लगभग विश्वास उठ गया था कि ये कोई हमारे मुद्दे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो लगातार मुझे लगता है मुद्दे रहेंगे पंजाब के, तो उनमें से एक तो है कि बेरोजगारी का मुद्दा, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा। हम्म। एक नौकरी नहीं है, विदेशों में जा रहे हैं, किसी भी ढंग से जाने को तैयार है वो। हम्म। ड्रग का इशू रहा है बड़ा। एक जो कुछ सेंसिटिव इशू है, जैसे अपना बेअदबी को, गुरु ग्रंथ साहब की जो बेअदबी हुई थी, उसका इंसाफ हम्म। नहीं मिल पाया। पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, उनको माफी की बात, सिख पॉलिटिकल पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात कर रहा हूं मैं। इसी हम्म। तरह ही एक और भी हमारा मुद्दा है जो कि पंजाब का, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। जी। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में भले ही कैसे संबंध हो, पंजाब वाले चाहते हैं कि नहीं, हम अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। हमारे पंजाब से ये मांग रही है कि जो बॉर्डर है, बाघा बॉर्डर या हम्म। हुसैनी वाला बॉर्डर, दो तीन बॉर्डर जो पड़ते हैं, उस वो खोल दिए जाएं, क्योंकि बॉर्डर के रास्ते व्यापार हो। क्योंकि यदि बॉर्डर के रास्ते व्यापार होगा तो दोनों तरफ के, खासकर हमारे पंजाब को बहुत एक तरह का हो। उनका लॉजिक भी है हम्म। कि भाई मुंबई की जो बंदरगाह के थ्रू व्यापार तो होता है, गुजरात और मुंबई के थ्रू तो होता है, जो जहाज के थ्रू होता है, शिप के थ्रू होता है। ट्रेडिंग, हाँ हाँ। ये जमीनी तौर पे क्यों नहीं हो सकता, जबकि दोनों के कल्चर हम्म। है, अभी भी दोनों। और ये तो इजियर भी है ना, इट इज इसलिए इजियर इसलिए बिकॉज, हाँ हाँ। हालांकि अभी कुछ समय पहले वो ट्रक वगैरह जाते भी थे, माल लेके इधर उधर जी। जाते भी थे, बाद में इन्होंने बंद कर दिए थे। ये इस हम्म। एक किताब में बड़ा इशू है, जब हम सरहदी इलाके में मैं जाता हम्म। तो वो बड़ा इशू रहा। तो उन्होंने, और यहाँ तक कुछ कैंडिडेट भी ये मुद्दा उठाते रहे हैं कि जैसे कांग्रेस के कैंडिडेट कुलबीर सिंह जीरा ने मुझे कहा कि ये हमारी मांग रहेगी। पंजाब में डॉक्टर हम्म। धर्मवीर गांधी ने ये बात आखी कही मुझे कि ये वो संसद हम्म। में वो पहुंच चुके, जीत चुके हैं, कि मैं ये मुद्दा को उठाऊंगा जाके। अकाली दल के हम्म। उम्मीदवारों ने भी ये मुद्दे पे, एक दो उम्मीदवारों ने मेरे पास ये मुद्दा उठाया, और लोगों के बीच तो हम्म। था ही था ये मुद्दा। ये एक मुझे लगता हम्म। है कि ऐसे मुद्दे हैं हमारे पंजाब के, जो मतलब एक बड़े मुद्दे, हम्म। वो व्यापार खुलने का मतलब है कि पंजाब को राहत मिलनी, पंजाब में जी। तरक्की, जी। इकोनॉमी के तौर पे एक तरक्की आनी। हम्म। ये भी बात है कि अब जब पाकिस्तान भी में भी जितने ज्यादा गुरुद्वारे वगैरह बने हुए हैं वहां, पाकिस्तान में सिखों के रह गए हैं ना वहां, उतने हम्म। पाकिस्तान के इस्लामिक केंद्र नहीं है। वो उनको एक बिजनेस के तौर पे काम आ सकते हैं, पाकिस्तान हुकूमत को भी। सो इस तरह इंटरेस्टिंग। दोनों का ही फायदा हो सकता है। सो मांगे रही हैं पंजाब की। जो फॉरम प्रोटेस्ट की बात की, उसमें से यह ऐसा था कि फॉरम प्रोटेस्ट का रहा है, क्योंकि लोगों ने, जो लोग सवाल पूछते रहे हैं, आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को तो गांव में ही नहीं घुसने दिया उन्होंने, वो एक फॉरम हम्म। प्रोटेस्ट का ही कारण था। लेकिन असर असर था। हम्म। लेकिन अब बीजेपी ने एक और काम जरूर किया कि फॉरम प्रोटेस्ट को इन्होंने एक कोशिश की कि जो दलित हैं, दलितों को, किसानों हम्म। को उल्ट खड़ा किया जाए। वो कामयाब तो नहीं हो सके, लेकिन फिर भी कोशिश की उन्होंने। इसी तरह जो हिंदू भाईचारा है, उसको भी, सिखों को खड़ा किया जाए। हालांकि वो नंगे तौर पे नहीं किया बीजेपी ने, क्योंकि बीजेपी ने सिखों की वोट भी लेनी थी। पर ऐसी कुछ हम्म। हुई है, क्योंकि हमें बंगाल का तजुर्बा याद रखना चाहिए कि बंगाल में भी बीजेपी बहुत जल्दी काबज नहीं हुई थी। लेकिन जब बहुत सारी हम्म। फॉल्ट लाइंस थी, लेफ्ट ने छोड़ी थी, जब हम्म। ममता ने छोड़ी थी, उसके बाद बीजेपी को मौका मिला, क्योंकि वहां भी मौका मिला। दलित इशू एड्रेस नहीं हुआ था, और कुछ मसले एड्रेस नहीं हुए थे। अभी भी पंजाब में ऐसे खप्पे हैं जहां फिर इस तरह की राइट विंग, चाहे वो सिख राइट विंग हो या हिंदू राइट विंग हो, वो कोशिश करेंगे कि लोगों के बीच में इस तरह का, एक तरह का ध्रुवीकरण करने दरार डाले। का। अच्छा, जी। बंगाल के बारे में थैंक यू। मेरा एक सवाल रहेगा आपसे। बंगाल बोलिए। लेफ्ट ने 35 साल कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, कई गलतियां भी हो गई, कई अच्छी बातें भी उन्होंने की, अच्छा कल्चर एक अच्छा है। तो आगे चलकर लेफ्ट का कोई फ्यूचर दिखता है आपको दोबारा?
इस बार तो इसको लेकर बहुत आलोचनाएं भी हुई हम्म, न्यूज़पेपर में। कुछ नए लीडर्स उन लोगों ने, लेफ्ट ने कॉन्टेस्ट किया, और लोग काफी आशावादी थे कि एक दो जीत जाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। मुझे लगा कि इस बार भाजपा के अगेंस्ट सेंटिमेंट इतना ज्यादा था। हम्म, उन्हें लगा कि ये वोट बट ना जाए, हम्म, ये कंसर्न था। हाँ, हम लोगों ने बात किया, हम वी हैव डिस्कस दिस बिफोर कि लेफ्ट का क्या रोल रहेगा। तो बहुत लोगों का कंसर्न था कि लेफ्ट टीएमसी के वोट्स को काट देगी, पर वो हुआ नहीं। हाँ, लोगों को एक बात मैंने 2019 के बाद, इलेक्शन के बाद भी कहा था कि लोगों को ना बंगाल में एक स्ट्रांग ऑपोजिशन चाहिए हमेशा। हाँ, वो स्ट्रांग ऑपोजिशन इस बार भी बीजेपी ही रहा। वो इस बात से, नो, टीएमसी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी, तो उनको एक ऑपोजिशन चाहिए था जो लेफ्ट नहीं बन पाया। और अभी भी वो वापस नहीं, वो समहाउ लोगों के समझा नहीं पाए उसने कि वो एक विकल्प है, वो एक ऑल्टरनेटिव है। हम्म, और मुझे लगता है कि बहुत से लोग ना बीजेपी की तरफ चले गए हैं, लेफ्ट के लोग। भी चलेंगे। वो बीजेपी के चले चले गए हैं जंगल महल में। फिर कुछ जहाँ दलित ज्यादा हैं, हम्म, वो बीजेपी की तरफ चले गए हैं, वो वापस नहीं आ गए इस बार भी। उस वही है। हाँ, और लेफ्ट का एक प्रॉब्लम रहा है कि एक समय था वो अपना जो भी मैनिफेस्टो शेयर करते थे, वो बस शहरी लोगों को समझ में आता था। गांव के लोगों तक वो पहुंचता नहीं था। अभी भी मुश्किल मुश्किल वो लैंग्वेज चेंज होगी। नहीं हुआ। मुश्किल बहुत ज्यादा। हाँ, और प्रोलिटेरिएट, वो बुर्जुआ वगैरह वगैरह। इन जी। लोगों को ये सब क्या क्या समझ में आता है। गांव के लोगों को अभी भी जो वेलफेयर स्कीम्स है, लक्ष्मी भांडार। हाँ, लक्ष्मी भांडार एक ऐसा स्कीम है जो महिलाओं को 25 से 60 वर्ष के महिलाओं को एक कैश असिस्टेंस प्रोग्राम है। ये चीज गांव के लोगों को समझ में आता है। हम्म, हाँ, और इस लैंग्वेज में लेफ्ट बात नहीं कर पाई, यही एक कारण है कि वो दे कुडंट मेक अ मार्क इस बार भी। वैसे बंगाल के बड़े मुद्दे क्या हैं? जैसे पंजाब के मैंने आपको बताए, बंगाल में जो बड़ा इशू क्या है, यदि आप मुझे थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहें तो। हम्म। आ, बंगाल का एक प्रॉब्लम है जो अभी थोड़ा सा न्यूज न्यूज में भी आ रहा है, फॉर्चुनेटली। करप्शन का प्रॉब्लम है। हाँ, घोटाले पे घोटाला हुआ जा रहा है। हाँ, बहुत से टीएमसी के मिनिस्टर, जैसे फूड मिनिस्टर, फिर एजुकेशन मिनिस्टर, सभी दे आर इन जेल राइट नाउ। और वहां के घोटाले का एक ऐसा इकोसिस्टम है शिविंदर, कि वो एकदम टॉप से बॉटम तक जाता है, सबको मिलता है। तो ये इकोसिस्टम ऐसा है कि इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। पता नहीं कब ये हो पाएगा। और ये जो प्रथा रही है, ये एक बहुत अनहेल्दी प्रथा है। हाँ, तो इसी को लेकर इस बार भाजपा ने बड़ा मुद्दा बनाया, करप्शन को लेकर। हाँ, पर वो भी टीएमसी ने घुमा दिया। उन्होंने कहा कि मनरेगा का फंड आप नहीं दे रहे हैं, आप यू आर बीइंग, यू आर नॉट बीइंग फेयर टू बंगाल। फिर और एक बात उन्होंने कहा, एक स्टेट टीचर्स, स्कूल टीचर्स रिक्रूटमेंट का स्कैम था, घोटाला था। तो हाई कोर्ट ने रुकवा दिया था बहुत सारे रिक्रूटमेंट, वो भी टीएमसी ने घुमा दिया। उन्होंने कहा कि आपने इतने सारे जॉब्स आपने बंद कर दिए। हाँ, तो करप्शन का जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा है। और ये मैं आपसे कह दूं कि जनरली जो शहरी एरिया है बंगाल में, वहाँ के लोग बहुत खफा है टीएमसी से, क्योंकि करप्शन है, घोटाला है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। हाँ, जैसे दूसरे प्रदेशों में भी है। और इंडस्ट्री तो कुछ ऐसा इंडस्ट्री है ही नहीं जो जॉब जनरेट कर सके। हाँ, जो भी इंडस्ट्री है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज्यादा बड़ा है बंगाल में। हाँ, तो अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, ये दोनों बहुत बड़े मुद्दे हैं। पर इस बार भाजपा ने ऑल्टरनेटिव कुछ विकल्प वो पेश नहीं कर पाए कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे आपने कहा, दूसरे प्रदेशों में भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत गाली गलौज हुआ दोनों पार्टी के बीच। पर अगर करप्शन खत्म करना हो तो एक दो तीन क्या क्या करेंगे।
वो उन लोगों ने अच्छे से लीडरशिप जो है भाजपा का वो बंगाल में समझा नहीं पाई। तो मुझे लगता है आगे जाके भी करप्शन ही एक ऐसा मुद्दा होगा जो टीएमसी को अंदर से तोड़ सकती है। ये अगर ममता दीदी ने संभाला नहीं तो ये बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा, और शायद बीजेपी नेक्स्ट टाइम उनके सीट्स का नंबर ज्यादा हो जाए। असेंबली इलेक्शन में देखते हैं क्या हुआ, क्योंकि वोट परसेंटेज भाजपा का इस बार बढ़ा। बड़ा है। दूसरा, ममता के जो भतीजे का भी सुना था कि उसका क्यों ममता के साथ कुछ कुछ अच्छा नहीं है। एक तो वो, और जो लगातार बंगाल में एक हिंसा का इतिहास रहा है, वायलेंस का इतिहास रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जानना चाहते थे जी। अब अभिषेक का क्या है, उनको उसको मालूम है कि ममता दी का जो इमेज है वो कभी उसको कॉपी नहीं कर पाएंगे। वो हम्म, बहुत बड़ी है, और ये एक प्रॉब्लम भी है बंगाल की पॉलिटिक्स का, कि यहाँ इट्स डिपेंडेंट ऑन वन लीडर, बस एक ही लीडर। उनका क्या पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी कल्ट का प्रॉब्लम है। अब अभिषेक का एक बहुत अच्छा है कि ऑर्गेनाइजेशनल क्षमता है उसमें। उन्होंने ही संभाला ये स्टिंग ऑपरेशन, उनका ही किया करा का है, क्योंकि वो अगर नहीं संभालते संदेश खाली को तो सचमुच भाजपा का वो पक्ष में जाता, भाजपा के पक्ष में जाता। और जो लोकल लीडर्स हैं उन पर अभिषेक का बहुत अच्छा होल्ड है। और इस बार बहुतों ने जो कैंडिडेट्स रहे वो अभिषेक के उन्होंने भी चुना। हाँ, पर उनको मालूम है कि ओवरऑल इमेज उनका उतना स्ट्रांग नहीं है। अनबन शायद है उनके बीच, पर उनको मालूम है कि दीदी को चाहिए, दे नीड ईच अदर। हाँ, एक ये तो रही। और वायलेंस के बारे में इस बारे में हमने पहले भी बात किया है कि वायलेंस बहुत ज्यादा है, पोस्ट पोल वायलेंस भी है। 2019 के बाद भी आपको याद होगा, तब भी कुछ सेक्सुअल एलिगेशंस, रेप एलिगेशंस थे जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। हाँ, और तब तो भाजपा, इफ भाजपा को इतना इफ दे केयर अबाउट द वुमन इन बंगाल, उनको तब वो सब केसेस वो ढकना नहीं चाहिए था शायद। मुझे लगता है कुछ तो सीक्रेट हैंडशेक हुआ होगा कि जो केसेस चली गई ह्यूमन राइट्स कमीशन, फिर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद गायब कैसे हो गई, है ना। तो ये सबको मालूम है, पर वायलेंस अभी इट्स अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। जो इकोसिस्टम मैंने समझाया, करप्शन जैसे एक पार्ट ऑफ द सिस्टम है, लोग मान लेते हैं इसको, एक नेसेसरी इविल बोलते हैं कि हमको अगर पीसफुली रहना है तो हमको ये अपनाना पड़ेगा। हाँ, वायलेंस भी ऐसा ही है। अब लोग इसी ये कारण है कि वो कभी भी टीएमसी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर भाजपा हार गई तो उनका पूरा विलेज, उनका गांव जला दिया जाएगा। हम्म। हाँ, और इसका बहुत ज्यादा दबदबा है। और इसी कारण जो रूरल एरियाज है, जो गांव एरियाज है, वहां अभी भी जो इनकम्बेंट पार्टी है उसी को वही वापस से आता है ताकत में, पावर में। ऐसे हमारे पास करीब 7 मिनट हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी एक दो सवाल मुझसे पूछ ले, मैं भी एक आधा सवाल आपसे ले लूँ। एक तो मुझे बताइए हाँ, कि हाँ, एक दलित थे जो काफी बड़ी गिनती में भाजपा के साथ जुड़े थे, क्या वो वापस कहीं आगे, जहाँ अभी भी वो भाजपा में ही है? एक तो ये सवाल। दूसरा मेरा सवाल ये है कि बीजेपी जैसे ताकत पर हुई है बंगाल में, तो हो सकता है कि उसने बंगाल का जो बहुत बड़ा रिच कल्चर था, क्या उसका भी उसने हिंदुत्वीकरण कर दिया, जब वो अभी बचा हुआ है बंगाल का, खास करके कि डिबेट्स का कल्चर, लिटरेचर का कल्चर, ये कितना बच पाया है या बच पाएगा आगे चलकर? दलित वोट अब बढ़ गए हैं। हम्म। हाँ, जो मटुआ महासंघ का है, जो ठाकुर फैमिली, हाँ, वो तो अभी भी बीजेपी की तरफ ही है, पर सीएए को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। एक सुइसाइड भी हुआ, क्योंकि उनको अभी वो देख रहे हैं कि व्हेन दे हैव टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप उनको कुछ कागज लाना पड़ेगा बांग्लादेश से, पर वो तो अब यहाँ आ गए। उनका आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, बांग्लादेश से कोई पेपर है नहीं, तो इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है। और ये एक कारण है कि कूच बिहार भी हार गई इस बार। हम्म। कूच बिहार में भी वो ममता दीदी ने इतना ज्यादा वेलफेयर स्कीम को अच्छा रोल आउट किया कि वहां भी भाजपा हार गई, उनको कन्विंस नहीं कर पाई कि सीएए से कुछ अच्छा कुछ होगा। दूसरी बात आपने कही कल्चर का। कल्चर। हाँ,
अब कल्चर का अभी असर कम हो गया है। अभी कल्चरली उतना रिच है नहीं बंगाल। अगर आप देखोगे नया क्या हो रहा है वहाँ, हम्म, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। बहुत ही वो टॉलीवुड कल्चर बन गया है। वो भी बहुत ज्यादा नकल करने लगे हैं बॉम्बे का। तो मुझे नहीं लगता कल्चरली कुछ भी। और जो, जो यूनिवर्सिटियों हाँ में डिबेट कल्चर वगैरह होता था, वो डिबेट का हाँ, कल्चर। वो लोग तो लेफ्ट लीनिंग है, पर आपसे मैंने कहा ना कि उसका असर गांव के लोगों पर नहीं है। जो बिगर इलेक्टोरेट है वो कभी भी ट्रांसलेट नहीं कर पाई कि गांव के लिए अच्छा क्यों है। उन्होंने भी कुछ विकल्प ऑल्टरनेटिव क्या है, ये अच्छे से लोगों को समझा नहीं पाई। मेरा आपसे एक सवाल है पंजाब के बारे में। जो आप ही राइट लोग हो। ये जो पंजाब में भी तो 30% दलित है। हाँ, 33। और 33%, विच इज वेरी हाई। बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है हाँ, कितना सारे ज्यादा है। सारे और देश से ज्यादा है तो पंजाब में। हाँ, सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। तो और आपने कहा कि भाजपा ने की इस बार कोशिश रही थी कि वो अपने तरफ खींच ले, और वो हुआ नहीं। तो आपको लगता है कि भविष्य में चांस है कि वो, क्योंकि भाजपा तो छोड़ते नहीं है, वो बहुत सेल्फ करेक्ट करते हैं और कोर्स करेक्ट करते हैं। तो फ्यूचर क्या है असल में उस हिसाब से? प्रॉब्लम ये रही है जो दलित वोट की, क्योंकि आप देखिए काशीराम भी पंजाब में पैदा हुए थे, बसपा के जो जी फाउंडर थे। लेकिन उसके बावजूद भी बसपा के भी कदम पैर नहीं लगे। उसका बड़ा कारण ये है कि दलितों में ना, भले ही 32% से ऊपर 33% आबादी है के करीब आबादी है दलितों की, पर दलितों जी, की 39 क्लास है, 39 कास्ट है पंजाब में। सब कास्ट। तो कास्ट ही बोलिए, मतलब जैसे वाल्मीकि हो गया, रविदासिया हो गया, रामदासिया हो गया, कास्ट मतलब जो दलित हैं वो भी अपने इतनी उनके कास्ट, भी अलग अलग। उनकी कास्ट। और सब कास्ट तो पता नहीं कितनी होगी, मतलब और भी हो सकती है, तो कास्ट भी ज्यादा। 39 हाँ। कास्ट जो है। अब वो 39 कास्ट के आपस में टकराव है बहुत सारे। मतलब एक तो ये ओ, एक सिंपल बात और, अनबन है। हाँ, कन्फ्लिक्ट है उनपे बहुत सारे यहाँ तक के जैसे रविदासिया हो गया। रविदासिया हम्म जिसको हम जाटव बोलते हैं हिंदी में। अब जाटव का में भी दो तीन कैटेगरी है जो आपस में शादी भी नहीं करती। जैसे आप जलंधर में जाओ तो आपको पता लगेगा ये चीज है। हम्म दूसरी चीज है कि एक मान लो कि रामदासिया है, दलित रामदासिया है। वो रामदासिया बाद में होगा, सिख पहले होगा। अब जो सिख आइडेंटिटी है उसकी, वो उसको बीजेपी की तरफ जाने से रोकती है। तो ओके। ये एक कारण है। इसलिए बीजेपी की कोशिश जरूर रहेगी, पर वो कामयाब कोई बड़े लेवल पे कामयाब हो जाएगी मुझे ये आस लगती नहीं, क्योंकि पंजाब का जो इतिहास रहा है, सारी की सारी दलित वोट ना, इथॉस। सभी की पूरी दलित वोट ना कभी एक तरफ नहीं गई पंजाब में। वो चीज है। अच्छा, जी, धन्यवाद। या तो बाकी श्रेया, आखिर में बंगाल के बारे में कोई 1 मिनट में कुछ बता दो हमें, कोई थोड़ा छोटा सा कैप्सूल दे दो। हाँ, अब देखने वाली चीज ये है कि भाजपा का जो वोट शेयर रहा है वो कम नहीं हुआ। हाँ, हालांकि 25-30 सीट नहीं जीत पाई, पर बंगाल में लोगों को विजिलेंट रहना पड़ेगा। हाँ, कि वो बहुत ज्यादा खुश होके बस अब सब छोड़ दिया। उनको संभालना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, करप्शन का प्रॉब्लम, अगर संभाल पाए ये सब तब तो ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट टाइम भाजपा का एक चांस है फिर से अच्छा करने का। सो वन शुड बी केयरफुल। पंजाब में भी हम्म भाजपा सीट भले ही नहीं कोई ले पाई, पर हम्म 18% वोट ले पाई है, खास करके जो हिंदू है। काफी है। हाँ, हिंदू का हाँ। उसने काफी ध्रुवीकरण किया है, पोलराइजेशन पोलराइज किया है उसको। हम्म अब वो उसको कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि देखो, भले ही मान लो कि कोई पार्टी आ जाए, किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पर वो पार्टी का जो एक्शन होता है, क्या वो मुआशरे के लिए अच्छा होता है या बुरा होता है, सवाल वो है। यदि वो उसका कोई एक्शन है वो आपको आपस में लड़ाने का है, तो मुझे लगता है कि केयरफुल होने की जरूरत है। चाहे वो कोई सी भी बहुत। पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या जी। कांग्रेस हो या कोई सी भी हो। इसी तरह जो सिख राइट विंग है, उनका जो सेक्शन है, जिनको पता नहीं कहाँ से सपोर्ट मिलती है। हमारा तो मानना है कि उनका रिमोट कंट्रोल एक ही जगह है, जहां जहां राम राम होता है वहां से ही खालिस्तान खालिस्तान होता है। ठीक है, तो उस रिमोट कंट्रोल पे भी निगाह रखने की जरूरत है, ताकि जो कि पंजाब पंजाबियों का पंजाब बना रहे। और बंगाल, जिसको हम दूर बैठे पंजाबी मानते हैं कि हमारा फिर भी आपसे एक रिश्ता है, वो बना रहे। जी शुक्रिया। एकदम, शुक्रिया।